اگلا سین شروع ہوتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر سبتے علی کو اس دن صبح ہی سیدہ اماں سے طویل گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ 2 یا 3 دن کے بعد ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا کرتے تھے اور آج بھی انہوں نے سیدہ اماں کی طبیعت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ ڈاکٹر سبتے علی بے یقینی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ انہیں سیدہ اماں کی کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ بے حد پریشانی کے عالم میں انہوں نے امامہ کو فون کر دیا۔ امامہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیدہ اماں ڈاکٹر سبتے علی سے واقعی میں سب کچھ کہہ دیں گی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ ڈاکٹر سبتے علی نے اس کا حال احوال پوچھتے ہی اس سے اگلا سوال یہی کیا تھا۔ سیدہ بہن نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو سالار سے کچھ شکایتیں ہیں۔ وہ بے حد پریشان لگے تھے۔ امامہ کا حلق یک دم خشک ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اقرار کرے یا پھر انکار۔ اس کی خاموشی نے ڈاکٹر سبتے علی کو مزید پریشان کر دیا۔ اور سالار آپ سے کون سی پہلی بیوی کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے؟ وہ بے اختیار ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل معاف ہو گیا تھا۔ وہ سالار کے خلاف تمام شکایات کو الزامات کے طور پر دہرانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر سبتے علی سے اتنی بے تکلفی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی جو اس نے سیدہ اماں سے کہا تھا۔ سیدہ اماں سے شکایتیں کرتے ہوئے اس نے مبالغے سے بھی کام لیا تھا، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ سیدہ اماں نے اس کی کون کون سی بات کس کس طرح سے انہیں بتائی ہے۔ اور اس کی مسلسل خاموشی نے ڈاکٹر سبتے علی کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ بیٹا جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بابا وہ مجھے بہت اگنور کرتا ہے، مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، اور اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کر دیا، اور 2 ہی جملوں کے بعد اسے سب کچھ بھول گیا۔ جو یاد تھا اسے وہ ڈاکٹر سبتے علی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے اتنے دنوں میں اس کی یا اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی، اس کے ساتھ سحری نہیں کی، افطار نہیں کی، آفس سے دیر سے آتا ہے، صبح کو اس کو بتائے بغیر گھر سے چلا جاتا ہے، اور اسے اتنے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے، اور اسے شادی کے دوسرے دن سیدہ اماں کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر سبتے علی نے اس کی دونوں شکایات پر غور کیے بغیر اس سے کہا، بیٹا اس نے آپ سے کسی اور شادی کا ذکر کیا ہے؟ وہ چند لمحوں کے لیے تو ہونٹ کاٹتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے سیدہ اماں سے جھوٹ بولا ہے، اور یہی وہ جھوٹ تھا جس نے سیدہ اماں کو اس قدر ناراض کر رکھا تھا۔ نہیں بابا، سیدہ اماں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ تردید کی، اور دوسری طرف فون پر ڈاکٹر سبتے علی نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پرسوں سیدہ اماں کے پاس وہ کیوں چھوڑ کے گیا تھا؟ انہوں نے دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا، بیٹا جب آپ دونوں ہمارے گھر پر تھے تب تو آپ کا وہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا نا، تو راستے میں کیا آپ لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا؟ اور انہوں نے تو اپنے آخری جملے سے امامہ کو جیسے بنا بنایا جواب دے دیا ہو۔ ہاں جی بابا ایسا ہی ہوا تھا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ… ڈاکٹر سبتے علی بات کرتے کرتے رک گئے۔ وہ سالار کے جس رویے کی منظر کشی کر رہی تھی وہ ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ خیر میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، آپ میری طرف آ جائیں، سالار کو بھی افطار پہ بلوا لیتے ہیں، پھر میں اس سے خود ہی بات کر لوں گا۔ امامہ نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ اس وقت یہی ایک چیز تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ بابا وہ آج کل بہت دیر سے آفس سے آ رہا ہے، اور کل رات بھی 9 بجے آیا، تو شاید آج نہ آ سکے، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس سے، ڈاکٹر سبتے علی نے کہا۔ جی، اس نے بامشکل کہا۔ جو ان کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا، وہ افطار کی دعوت پر نہ آنے کے لیے کس مصروفیت کو جواز بناتا؟ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سبتے علی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کاٹنے لگی۔ یہ درست تھا کہ اسے سالار سے شکایتیں تو تھی، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ہی دن اس طرح کی کوئی بات ہوتی۔
हेलो स्वीट हार्ट। 5 ही मिनट बाद उसने अपने सेल पर सालार की चहकती हुई आवाज सुनी और उसके ज़मीर ने उसे बुरी तरह से मलामत किया। भाई बंदा उठता है तो कोई मैसेज ही कर देता है, फोन ही कर लेता है, ये तो नहीं कि उठते ही मेके जाने की तैयारी शुरू कर दी जाए। वो बेतकल्लुफी से हालात की नौयत का अंदाजा लगाए बगैर उसे छेड़ रहा था और इमामा के एहसासे जुर्म में मजीद इजाफा होता गया। ये लड़की भी ना, डॉक्टर सिप्ते अली ने यकीनन उससे फिलहाल कोई बात किए बगैर उसे इफ्तार पर ही बुलाया होगा, वो यही सोच रही थी। मामा, डॉक्टर साहब अभी इफ्तार के बारे में कह रहे थे। मैंने उन्हें कहा है कि मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, वो उसे बता रहा था। और इमामा को यकदम कुछ उम्मीद बंधी, वो अगर पहले घर आ जाता तो वो उससे कुछ बात कर लेती, कुछ माजरत करके उसे डॉक्टर साहब के घर मुतवक्की सूरत हाल के बारे में आगाह कर सकती थी। उसने इत्मीनान का सांस लिया। हाँ, ये हो सकता था। लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें भिजवा देता हूं, सालार ने अगले जुमले में से ऑफर की। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चली जाऊंगी, इमामा ने बेख्तियार कहा। ओके ठीक है, मैं फिर उन्हें बता देता हूं। और तुम क्या कर रही हो अभी? उसका दिल चाहा वो उससे कहे कि वो इस गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रही है जो उसने सालार के लिए खोदा था। अच्छा इमामा सुनो, फुरकान की मुलाजमा आएगी आज सफाई करने के लिए। आमतौर पर तो वो सुबह मेरे जाने के बाद आकर सफाई करती है, लेकिन तुम उस वक्त सो रही होती हो तो मैंने उसे फिलहाल उस वक्त आने से मना किया है। तुम भाभी को कॉल करके बता देना कि वो उसे कब भेजें, ठीक है? वो शायद इस वक्त ऑफिस में फारिग था, इसलिए लंबी बात कर रहा था। अरे भाई कुछ तो बोलो यार, इतनी चुप क्यों हो इमामा? नहीं वो मैं ऐसे ही, उसके सवाल पर बेख्तियार गड़बड़ाई। तुम फ्री हो इस वक्त? उसने बेमुहतात लहजे में पूछा। अगर वो फारिग था तो वो अभी उससे बात कर सकती थी। हाँ, एवेल्युएशन टीम चली गई है, कम से कम आज का दिन तो हम सब बहुत रिलैक्स्ड हैं। अच्छे कमेंट्स देकर गए हैं वो लोग। वो बड़े मुतमईन अंदाज में उसे बता रहा था और वो उसकी बातों पे गौर किए बगैर सिर्फ उसी बात के बारे में सोच रही थी कि उसे कैसे बताए। वैसे अगर आज डॉक्टर साहब इनवाइट ना करते ना तो मैं सोच रहा था कि हम रात को कहीं बाहर खाना खाने जाते, लेकिन इमामा की सुई तो अभी भी वहीं पे अटकी हुई थी। चुल्लू भर पानी में डूब मरने के मुहावरे की आज पहली बार इमामा की समझ में आया था। ये मुहावरतन नहीं कहा गया था, वाकई बात सिचुएशंस में चुल्लू भर पानी में डुबोने के लिए काफी होता है। ये मुहावरतन नहीं कहा गया था, वाकई में बात सिचुएशंस में चुल्लू भर पानी भी डुबोने के लिए काफी होता है। वो अब बात शुरू करने के जतन कर रही थी और ये कैसे कर रही उसे समझ में नहीं आ रहा था। वैसे औरतों की जुबान जो है ना वो टक 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 चलती है, लेकिन जब काम की बात करनी हो तो रुक जाती हैं। और तभी सालार ने ये कह दिया, ठीक है फिर मैं डॉक्टर साहब को जरा बता दूं, इंतजार कर रहे होंगे। इससे पहले कि उसे कुछ कहती सालार ने बात खत्म करते हुए कॉल ही बंद कर दी और वो फोन हाथ में पकड़े बैठी रह गई। साथ ही हुआ सीन खत्म। अगले सीन में पूरी तैयारियां हो रही थी डॉक्टर सिप्ते अली के घर जाने की। वो तकरीबन 4 बजे घर आया था और वो उस वक्त तक ये तय कर चुकी थी कि उसे उससे किस तरह से बात करनी है। पूरा दिन उसका इसी तैयारी में गुजर गया कि साहब आएंगे तो मैं उन्हें ये बताऊंगी। लेकिन सालार ऊपर नहीं आया था। उसने फोन पर उसे नीचे आने के लिए कहा। वो जब गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर बैठी तो उसने मुस्कुराकर सर के इशारे से उसका इस्तकबाल किया। वो फोन पर अपने ऑफिस के किसी आदमी से बात कर रहा था। हैंड फ्री कान से लगाए डॉक्टर सिप्ते अली के घर की तरफ ड्राइविंग करते हुए वो मुसलसल उसी कॉल पे मसरूफ रहा। अरे मामा की तो जैसे जान पर बनाई थी। अगर वो सारे रास्ते बात करता रहा तो एक सिग्नल पर रुकने पर उसने सालार का कंधा थपथपाया और बेहद खफकी के आलम में से कॉल खत्म करने का इशारा किया।
नतीजा फौरी तौर पर आया। चंद मिनट मजीद बात करने के बाद सालार ने कॉल बिलाखिर खत्म कर ही दी। अरे सॉरी यार, एक क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो रहा था तो बस उसी के साथ, उसने कॉल खत्म करने के बाद कहा। अच्छा सुनो, इस्लामाबाद चलोगी? उसके अगले जुमले ने मामा के होश उड़ा दिए। वो सब कुछ जो वो सोच कर आई थी उसके जहन से गायब हो गया। इस्लामाबाद? उसने बेहद गैर यकीनी से सालार को देखा। हाँ, मैं इस वीकेंड पर जा रहा हूं, सालार ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? वो बेख्तियार अटकी। अरे तुम्हारे पापा ही तो मना करके गए थे कि मुझे अपने साथ इस्लामाबाद ना लेकर आना, तो फिर? सालार ने उसकी बात काटी और कहा, हाँ, और अब वही कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें साथ लाना चाहूं तो ले आऊं। उसने बड़ी रवानी से कहा और उसका चेहरा देखती रही। लेकिन मेरी फैमिली को पता लग सकता है, उसने लंबी खामोशी के बाद बिलाखिर कहा। आज या कल तो पता लगना ही है ना, सालार ने उसी अंदाज में कहा। यह मुमकिन तो नहीं है कि मैं सारी उम्र तुम्हें छुपा कर रखूं, वो संजीदगी से कह रहा था। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे बारे में लोगों से कहा है कि तुम शादी के बाद बैरून मुल्क सेटल हो गई हो। अब इतने सालों के बाद तुम्हारे हवाले से कुछ करेंगे तो खुद उन्हें भी एम्बैरेसमेंट होगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे। वो मुतमईन था। नहीं, तुम उन्हें नहीं जानते सालार, उन्हें पता चल गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। वो परेशान होने लगी थी। मेरी बात सुनो, वहां हम कभी कभार जाया करेंगे, खामोशी से जाएंगे और आ जाया करेंगे। यार इतना सोशलाइज नहीं करेंगे ना वहां। उसकी बेफिक्री से चिड़ी। उन्हें पता चला तो वो मुझे ले जाएंगे और वो मुझे मार डालेंगे। वो रोहानसी हो रही थी। फर्ज करो मामा, अगर उन्हें इत्तेफाकन तुम्हारे बारे में पता चलता है या यहाँ लाहौर में तुम्हें कोई देख लेता है, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो? अरे नहीं पता चलेगा ना, मैं कभी बाहर जाऊंगी ही नहीं, उसने बेसाख्ता कहा। तुम्हारा दम नहीं घुटेगा इस तरह? उसने चौंक कर उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में मसीहा जैसी हमदर्दी थी। मुझे आदत हो गई है सालार, इतना ही सांस लेने की, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब मैं जॉब नहीं करती थी तो महीनों घर से नहीं निकली थी। मैं इतने सालों से लाहौर में हूं, लेकिन मैंने यहाँ बाजारों, पार्क्स और रेस्टोरेंट्स को सिर्फ सड़क पर सफर करते हुए बाहर से देखा है, या फिर टीवी और न्यूज़पेपर्स में। मैं अगर उन जगहों पर जाऊं तो मुझे समझ ही नहीं आएगी कि मुझे वहां करना क्या है। और जब मैं मुल्तान में भी थी तो तब भी हॉस्टल और कॉलेज के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं थी मेरी जिंदगी में। अब लाहौर आ गई हूं तो यहां भी पहले यूनिवर्सिटी और अब घर और अब घर। मुझे इनके अलावा दूसरी जगह अजीब सी लगती हैं। हाँ, महीने में एक बार मैं सईदा अम्मा के घर के पास एक छोटी सी मार्केट में उनके साथ जाती थी और वो मेरी वाहिद आउटिंग होती थी। वहां एक बुक शॉप थी ना, मैं पूरे महीने के लिए बुक्स ले लेती थी वहां से। किताबों के साथ वक्त गुजारना आसान हो जाता है शायद। और पता नहीं वो क्यों उसे ये सब बता रही थी। हाँ, वक्त गुजारना आसान होता है मामा, लेकिन जिंदगी गुजारना नहीं। उसने एक बार फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा और वो ड्राइव कर रहा था। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता सालार। मुझे फर्क पड़ता है मामा, और बहुत फर्क पड़ता है यार। सालार ने बेख्तियार उसकी बात काटी। मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूं, जैसे कभी तुम्हारी जिंदगी थी। और क्या तुम नहीं चाहती कि ये सब कुछ खत्म हो जाए? वो उससे पूछ रहा था। लेकिन सालार, एबनॉर्मल लाइफ ही सही, लेकिन मैं सेफ तो हूं ना। सालार ने बेख्तियार उसके कंधों पर अपना बाजू फैलाया। लेकिन तुम अब भी सेफ रहोगी मामा, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। मेरी फैमिली हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। क्या सोच रही हो अब तुम? सालार ने बोलते बोलते इसकी खामोशी नोटिस की। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने साथ तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया यार, ये ठीक नहीं हुआ। वो बेहद अपसेट हो गई।
ہاں اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کرتی تو یہ واقعی انفیئر ہوتا، لیکن میری تو کوئی بات نہیں ہے یار، میں نے تو خیر پہلے بھی تمہاری فیملی کی بہت گالیاں اور بد دعائیں لی ہیں، اب پھر صحیح۔ وہ بڑی بے پرواہی سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر سیٹ بک کروا دوں تمہاری؟ وہ واقعی ٹھیٹ تھا، اور اس کے جواب میں امامہ نے کچھ نہیں کہا اور وہ چپ رہی، اور وہ بالکل بھول گئی تھی کہ وہ جو پورے دن سے تیاری کر رہی تھی سالار کے سامنے بتانے کے لیے، اس کی برائیوں کے لیے، وہ سب کچھ بھول چکی تھی اور اس نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ختم ہو گیا۔ اگلا سین شروع ہوا ڈاکٹر سبتے علی کے گھر سے۔ اس شام سالار کو ڈاکٹر سبتے علی اور ان کی بیوی کچھ بہت ہی زیادہ سنجیدہ لگ رہے تھے، اور اس سنجیدگی کی کوئی اور وجہ اسے سمجھ نہیں آئی۔ امامہ بھی کھانے کے دوران بالکل خاموش تھی، لیکن اس نے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ ہی سمجھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈاکٹر سبتے علی نے اس موضوع کو چھیڑا۔ سالار بیٹا، امامہ کو کچھ شکایتیں ہیں آپ سے۔ وہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے ٹھٹکا۔ یہ بات اگر ڈاکٹر سبتے علی نے نہ کہی ہوتی تو وہ اسے یقیناً مذاق سمجھتا۔ اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں ڈاکٹر سبتے علی کو دیکھا اور پھر اپنے برابر میں بیٹھی امامہ کو۔ وہ چائے کا کپ اپنے گھٹنے پر رکھے چائے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا آیا، لیکن امامہ نے کس وقت ڈاکٹر صاحب کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تھا؟ وہ بے حد حیران ہوا، اسے کوئی اور وجہ تو سمجھ آئی ہی نہیں تھی۔ جی؟ اس نے کپ واپس رکھتے ہوئے کہا۔ امامہ آپ کے رویے سے خوش نہیں ہے بیٹا، ڈاکٹر سبتے علی نے اگلا جملہ بولا، اور سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جی، اس نے بے اختیار کہا، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ امامہ پہ طنز کرتے ہیں؟ وہ پلکیں جھپکے بغیر ڈاکٹر سبتے علی کو دیکھتا رہا۔ بمشکل سانس لے کر چند لمحوں کے بعد ہی اس نے امامہ کو پھر سے دیکھا۔ یہ آپ سے امامہ نے کہا ہے؟ اس نے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سبتے علی سے کہا۔ ہاں، آپ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے۔ سالار نے گردن موڑ کر ایک بار پھر سے امامہ کو دیکھا، وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی ہی تھی۔ اور یہ بھی آپ سے امامہ نے کہا؟ اس کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر سبتے علی نے سر ہلایا۔ سالار نے بے اختیار اپنے ہونٹ کا ایک کونا کاٹتے ہوئے چائے کا کپ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا ذہن بری طرح چکرا گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورتحال میں سے ایک تھی۔ امامہ نے چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر نظریں جمائے، بے حد شرمندگی اور پچھتاوے کے عالم میں اس کو گلا صاف کرتے ہوئے کہتے سنا۔ اور کیا کہا ہے امامہ نے؟ جو کچھ ہو رہا تھا یہ اس کی خواہش تو نہیں تھی، حماقت ہی تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اور یہ کہ آپ کہیں جاتے ہوئے اسے انفارم نہیں کرتے؟ پرسوں آپ جھگڑا کرنے کے بعد اسے سعیدہ بہن کی طرف چھوڑ گئے تھے۔ اس پر سالار نے پہلے کلثوم آنٹی کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر سبتے علی کو اور پھر امامہ کو۔ اگر آسمان اس کے سر پر گرتا تب بھی اس کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہوئی تھی۔ جھگڑا؟ میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا امامہ، کیا؟ اس نے بامشکل ہی اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔ اور امامہ نے تو خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ سعیدہ اماں کے گھر رہنا چاہتی ہے، اور میں تو پچھلے 4 دنوں سے کہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس نے امامہ کی سسکی سنی تھی۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا، وہ اپنا ناک رگڑ رہی تھی۔ کلثوم آنٹی اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کی طرف متوجہ تھے۔ سالار بات جاری نہیں رکھ سکا۔ کلثوم آنٹی اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے دلاسا دینے لگی۔ وہ ہکا بکا بیٹھا رہا اور ڈاکٹر سبتے علی نے ملازم کو پانی لانے کے لیے کہا۔
सालार बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त वहां अपनी सफाइयां देने और वजाहत करने का मौका नहीं था। वो चुपचाप बैठा उसे देखता रहा और सोचता रहा। वो उल्लू का पट्टा है, क्योंकि पिछले 4 दिन से उसकी छठी हिस्स जो सिग्नल्स बार बार दे रही थी वो बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ उसने खुशफहमी और बेपरवाही का मुजाहिरा किया था। 5-10 मिनट के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो डॉक्टर साहब तकरीबन आधे घंटे तक सालार को समझाते रहे और वो खामोशी से सर हिलाते हुए उनकी बातें सुनता रहा। उसकी बराबर बैठी इमामा को बेहद नदामत हो रही थी, क्योंकि इसके बाद उसने सालार से तो अकेले में ही सामना करना था, इसलिए उसे बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। ये इससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। आधे घंटे के बाद वो दोनों वहां से रुखसत होकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी डॉक्टर सिप्ते अली के घर के गेट से बाहर निकलते ही इमामा ने उसे कुछ कहते सुना। मुझे यकीन नहीं आ रहा इमामा, मैं यकीन नहीं कर सकता इस बात पे। उसे इससे इसी रद्द-ए-अमल की तवक्को थी और वो विंडस्क्रीन से नजर आती हुई सड़क पर नजरें जमाए बैठी रही। इस वक्त बेहद वो नर्वस हो रही थी। तो मैं तुम पर तंज करता हूं इमामा, तुमसे ठीक से बात नहीं करता, तुम्हें बताए बगैर जाता हूं। तुम्हें सईदा अम्मा के घर में छोड़ गया था, बल्कि झगड़ा किया था। तुमने लोगों से झूठ बोला। इमामा ने बेख्तियार उसे देखा। वो झूठ का लफ्ज इस्तेमाल न करता तो उसे इतना बुरा ना लगता। सालार साहब, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, उसने बेहद खफगी से कहा। मैं तुम पे तंज करता हूं, हां? सालार की आवाज में तेजी आ गई। तुमने उस रात मेरी अंधेरे में सोने की आदत को अजीब कहा था ना? वो बेयकीनी से उसका मुंह देखता रहा। तो क्या वो तंज था? वो तो बस ऐसी एक बात थी यार, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, उसने बेसाख्ता कहा। तुमने भी तो जवाबन मेरी रोशनी में सोने की आदत को अजूबा कहा था। लेकिन वो इस पर चुप रही। सालार वाकई बहुत ज्यादा नाराज हो रहा था। अच्छा, और ये जो दूसरी बात थी कि मैं तुमसे ठीक से बात नहीं करता, वो अगले इल्जाम पर आया। हाँ, मुझे लगा था, उसने इस बार मुदाफियाना अंदाज में कहा। लगा था? वो मजीद खफा हुआ। तुम्हें सिर्फ लगा और तुमने सीधा डॉक्टर साहब से जाकर कह दिया? सालार, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, वो सईदा अम्मा ने उनसे सब कुछ कहा है, उसने वजाहत की। और वो चंद लम्हे सदमे के मारे कुछ बोल ही नहीं सका। यानी तुमने उनसे भी ये सब कुछ कहा है? और वो चुप रही। वो होंठ काटने लगा। उसे अब सईदा अम्मा की उस रात की बेरुखी की वजह समझ में आ रही थी। अच्छा, और ये कि मैं कहाँ जाता हूं जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, ये क्या बात थी? सालार को याद आया। हाँ, तो तुम सहरी के वक्त मुझे बता कर गए थे क्या? और सालार उसका चेहरा देखकर रह गया। इमामा, मैं मस्जिद जाता हूं उस वक्त फुरकान के साथ, और उसके बाद जिम, और फिर वापस घर आ जाता हूं। अब मैं मस्जिद भी तुम्हें बताकर जाया करूं? वो झुंझलाया था। तो मुझे क्या पता कि तुम इतनी सुबह कहां जाते हो? मुझे तो अपसेट ही होना था ना, इमामा ने कहा। इमामा किसी भी तरह से ये सारा इल्जाम अपने पे नहीं लेना चाहती थी और वो अपनी सफाइयां देने पे बज़िद थी, लेकिन वो इसकी इस वजाहत पर मजीद तक गया। अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं रमजान में सहरी के वक्त कहां जा सकता हूं? किसी नाइट क्लब में, हाँ? या फिर हाँ, किसी गर्लफ्रेंड से मिलने? कोई अहमद भी जान सकता है कि मैं कहां जा सकता हूं इमामा? ये कैसा सवाल था? वो अहमक के लफ्ज पर बुरी तरह तिलमिलाई। हाँ, तो ठीक है, मैं वाकई अहमक हूं, बस मैं और मेरी बात सुनो, सईदा अम्मा के घर में रहने का तुमने कहा था, मैंने नहीं कहा था। और कौन सा झगड़ा हुआ था हमारा, बताओ जरा। और इस आखिरी बात पे वो बिल्कुल खामोश रही। इमामा, इतने ज्यादा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो इस बार उसकी बात पर रूहानसी हो गई। बार बार झूठ मत कहो इमामा, जो झूठ है मैं उसे झूठ ही कहूंगा। तुमने डॉक्टर साहब के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में यार। वो वाकई बुरी तरह से अपसेट था। सालार, अब इस सबको खत्म करो, चुप हो जाओ। हाँ, जब ऐसी सूरत हाल हो तो लड़कियां क्या करती हैं, जल्दी से गेस करके बताएं। यस, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, आंसू बहाना शुरू कर देती हैं। मतलब इतनी सी देर लगती है लड़कियों को रोने में, और ये आंसू बेचारे मर्द का दिल तो पिघला ही देते हैं। और सालार के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और सालार उससे कहने लगा, अच्छा अब ये सब खत्म करो यार। उसने इमामा के गालों पर यकदम बहने वाले आंसू देख लिए थे और वो बुरी तरह से झुंझलाया था। देखो, हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं इमामा, उसमें रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो रोती रही। अरे ये ठीक नहीं है इमामा, तुमने डॉक्टर साहब के घर भी यही किया था मेरे साथ। अच्छा चुप हो जाओ ना प्लीज। उसे बेहद उस पे प्यार आ रहा था और उसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन झुंझलाहट बढ़ गई थी। जो कुछ भी था वो उसकी शादी का चौथा दिन था और वो 1 घंटे में दूसरी बार यूं ज़ारो कतार रो रही थी। उसकी जगह कोई भी लड़की यूं रो रही होती तो वो परेशान होता, और ये तो उसकी अपनी इमामा थी। वो बेख्तियार नरम पड़ा, उसका दिल पिघल चुका था, वो अपनी सारी नाराजगी भूल चुका था। उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाकर उसने जैसे उसे चुप करवाने की कोशिश की थी। इमामा ने डैशबोर्ड पर पड़े टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू पेपर निकालकर अपनी सुर्ख होती हुई नाक को रगड़ा और सालार की सुलह की कोशिशों पर पानी फेरते हुए कहा, मैं इसीलिए तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे पता था तुम मेरे साथ इसी तरह का सलूक करोगे। बस लड़कियों के नखरे उठवा लो, मतलब मनाने पे आ जाओ तो और नखरे करना शुरू हो जाती हैं, ये बात लिखवा लें आप मुझसे। वो उसके इस जुमले पर एक लम्हे के लिए बेचारा साकित रह गया। मुझे तो इस वक्त शदीद रहम आ रहा है इस बेचारे सालार पे। फिर उसने उसके कंधे से हाथ हटाते हुए कहा, कैसा सलूक, क्या तुम वजाहत करोगी? उसके लहजे में फिर खफकी उतर आई। मैंने आखिर क्या किया है यार, तुम्हारे साथ क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? और वो फिर एक बार हिचकियों से रोने लगी। सालार ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर दी। वो ड्राइविंग न कर रहा होता तो यकीनन सर पकड़ लेता, और बाकी रास्ते में दोनों में कोई बात नहीं हुई। कुछ देर बाद वो बिलाखिर चुप हो गई और सालार ने सुकून का सांस लिया।